Good morning, dear students. Again, we will meet today. I welcome you all at Suraj School, Mahendragarh. In our previous lecture, last lecture, we discussed the first topic of our chapter, the human eye. Today, we continue our topic. We can start with the working of human eye. Because in previous lecture, we discussed human eye, its structure and different parts and their functioning. After that, the working of human eye we can discuss here. Okay. In working, we can say that how image is formed. How image is formed in our eye. Working of human eye. वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई. वर्किंग में हम कंसिडर करेंगे स्ट्रक्चर. हमारी आई के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उससे किस टाइप से हमारी इमेज है वो फॉर्म हो रही है. ठीक है. वी ऑलरेडी नो दैट द बैक पार्ट ऑफ अवर आई. द बैक पार्ट ऑफ अवर आई. Simply we can draw like this. Okay, this is our eye lens. ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था बेटा. सबसे फ्रंट पार्ट हमारी आई का क्या होता है? कॉर्निया, विच इज ट्रांसपेरेंट. एंड आफ्टर दैट आयरिस, सेंटर में प्यूपिल, आई लेंस. और बैकवर्ड पार्ट, the back part of the eye is known as retina. Retina, it behaves like as a screen on which image of the object is formed. Image of the object is formed. Okay. So we already know that in the chapter light we discussed that type of lenses. This is convex lens. A convex lens has a property to produce real, inverted and smaller image. In this case, in our eye, हमारी आंख के केस में जो कन्वेक्स लेंस है वो कैसी इमेज बनाएगा? यहाँ पे रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर इमेज. ओके. तो वी कैन कंसिडर इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. लाइक एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ आवर आई. दिस इज ऑब्जेक्ट. We consider the light rays from the object entering into our eye. After entering into our eye, the light rays entering into our eye and the image is formed here. Okay, this is object, eye lens or a convex lens. This is our image which is formed real, inverted, or this is our retina. Image is real, inverted and smaller than the object. Why image is formed on retina? Because retina behaves like a screen, or it has two types of cell. It has two types of cell. One is rod cells and another is cone cells. These both cells present on the retina of our eye. Because these both cells are light sensitive cells, due to which when light from any object enter into our eye, when it passes from cornea and eye lens of our eye, it forms the image on retina. Okay, due to these rod and cone cells, because these are sensitive to light. We can say particularly rod cells are sensitive to
brightness or intensity of light, and the cone cells are sensitive to the different type of color, different types of color. These are respond to different type of colors. That's why the image is formed on retina. Okay, so object, and this is our image, which is smaller. We can say that in mostly cases in convex lens, image is real and inverted, but in one case image is virtual, erect and diminished or magnified. Virtual, erect and magnified image is formed, which we discussed in previous chapter, light reflection and refraction. Okay, this is the working of the human eye. These signals, the image which is formed on retina, these signals are sent to our brain with the help of an optic nerves which is present on retina. ऑप्टिक्स नर्व जो हमारे रेटिना के ऊपर प्रेजेंट हैं, उनकी हेल्प से ये सिग्नल्स हमारी ब्रेन तक कम्युनिकेट किए जाते हैं और हमारी ब्रेन जो इन्वर्टेड इमेज है, जो इन्वर्टेड इमेज हमारे रेटिना के ऊपर जो बनी है, उसको डिकोड करती हैं और डिकोड करने के बाद उस इमेज को क्या करती हैं, जैसा ऑब्जेक्ट है एज इट इज वो इमेज हमें रीड होती है, वैसा का वैसा हम उसे देखते हैं. Okay, so this is the working of our human eye, how image is formed, how signals are conveyed to our brain. Okay, next we can discuss when we see different type of object. जब हम अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट देखते हैं, कोई पास है, कोई दूर है, डिफरेंट पोजीशंस पे ये रखे हुए हैं, तो जो एक ऑब्जेक्ट हमने देखा उसके तुरंत बाद हम दूसरा ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, तो इस टाइप हमारी जो आई है वो एक तरीके की पिक्चर क्रिएट कर देती है कि कंटिन्यू कोई फिल्म है वो हमारी आंखों के सामने चल रही है. ठीक है, तो उसका क्या फिनोमिना है, अब वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. जैसे आप मूवीज वगैरह में देखते हैं, मूवीज में क्या है, कंटिन्यूटी आपको एक दिखती है, वहां पे की सीन है कंटिन्यू चलते जा रहे हैं, तो कंटिन्यूटी कैसे बनाई गई है, तो इसका एक फिनोमिना होता है परसिस्टेंस ऑफ विजन. ओके, द फिनोमिना इज नोन एज persistence of vision. Persistence of vision. अब हम persistence of vision से समझते क्या है. देखो सिंपल से हम कह सकते हैं हमारी आंख क्या है, हमने कहा था कि एक फोटोग्राफिक कैमरे की तरह बिहेव करती है. Our eye behaves like a photographic camera. ओके, तो जो हमारी आंख है उसमें जो इमेज हमने देखा है कोई भी ऑब्जेक्ट, उसकी इमेज नाइदर परमानेंट होती है नॉर ही हम कहें कि डिमिनिश तुरंत हो जाती है. ठीक है, तो जो हमारी आंख में इमेज बनी है वो तुरंत की तुरंत तो डिमिनिश भी नहीं होगी, खत्म भी नहीं होगी हमारी आईज में से, और ना ही वो परमानेंट रहती है कि आपने एक ऑब्जेक्ट देख लिया तो आपकी इमेज है वो स्टोर हो गई है और मतलब आप उसको परमानेंट रख सकते हो आई के अंदर, ऐसा भी नहीं है. ठीक है, तो डिफरेंट जो हमारे केसेस हैं यहाँ पे वो हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो वो इमेज ना तो फेड होती है और ना वो परमानेंट होती है, तो इसी फिनोमेना. और वो क्यों नहीं हो रही है, इसका भी रीजन क्या है कि द इमेज, जो ऑब्जेक्ट आपने देखा है उसकी इमेज हमारी आईज के अंदर परसिस्ट रहती है. परसिस्ट रहना मतलब वो थोड़े टाइम के लिए हमारी आंख के अंदर रेटिना पे एज इट इज रहती है, हमारी ब्रेन उसको एज इट इज मतलब कन्वे करती है, उस मैसेज को मतलब रखती है. तो वो टाइम है हमारा 1/16 ऑफ सेकेंड, 1/16 ऑफ सेकेंड. ओके, तो द इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट seen, the image of any object seen persist on the retina for 1/16 of a second. आपने कोई भी ऑब्जेक्ट देखा है उसकी इमेज हमारे रेटिना के ऊपर 1/16 ऑफ अ सेकेंड के लिए वो वहां पे एज इट इज रहती है, उसके बाद वो इमेज है वो फेड होती है. ओके, तो टाइम आप याद रखेंगे, 1 सेकेंड का 16th पार्ट आप बोल सकते हो इसको. ठीक है, 1/16 ऑफ अ सेकेंड वो क्या है हमारा परसिस्टेंस ऑफ विजन, वहां पर इतने टाइम के लिए वो इमेज रेटिना पे बनी रहती है. अगर हम उसी ड्यूरेशन में 1/16 ऑफ टाइम से पहले ही हम दूसरा ऑब्जेक्ट देख लेते हैं तो एक सेंस ऑफ कंटिन्यूटी वहां पे मेंटेन हो जाती है. सेंस ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, सेंस ऑफ कंटिन्यूटी इन द सेंस आपको ऐसा लगता है कि लगातार कोई चीज चलते हुए जा रही है.
ठीक है। तो उनमें आप डिफरेंशिएट इतना मतलब ये नहीं कह पाओगे ये हमने बात पहले देखा था, ये हमने बात, तो एक कंटिन्यूटी वहां पे बन जाती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, परसिस्टेंस ऑफ विजन। इसी कंटिन्यूटी को बोला जाता है परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो वी कैन डिफाइन द परसिस्टेंस ऑफ विजन लाइक दैट द कंटिन्यूएंस ऑफ सेंसेशन ऑफ आई, द of sensation of eye, the continuance of sensation of eye for some time, for some time after the removal of object, after the removal of object is called persistence of vision। इसी कंटिन्यूटी को क्या कहा जाता है कि ऑब्जेक्ट हमारी आंखों के सामने हट गया है, उसके बाद भी वो हमें कुछ टाइम के लिए ऐसा लग रहा है कि हम देख पा रहे हैं, वो हमारी आईज के सामने है। तो वो किसकी वजह से है, इस परसिस्टेंस ऑफ विजन की वजह से, इस कंटिन्यूटी की वजह से वो चीज वहां पे प्रेजेंट है। ओके, तो अब ये किसमें ये फिनोमिना कहाँ पे यूज होता है, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि हमारी आंख किसकी तरह बिहेव करती है, इट बिहेव्स लाइक एन फोटोग्राफिक कैमरा। तो दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन सिनेमेटोग्राफी or we can say in motion pictures. The use of this is, it uses in cinematography. The use of persistence of vision in cinematography, or you can say that in motion pictures, in motion pictures. The pictures you can see in TV or laptop जो भी, okay? तो ये सिनेमा में ये चीजें यूज की जाती हैं, इन्हीं चीजों के ऊपर बेसिस पे वहां पे काम किया जाता है कि आपको जो मूवीज में जो पिक्चर्स है वो कंटिन्यूटी के साथ वहां पे दिखती हैं। और आपकी जो ये तो हो गया मोशन पिक्चर का एग्जांपल हो गया। जब हम कहते हैं स्टिल जो पिक्चर्स होती हैं, स्टिल पिक्चर्स जो होती हैं, उनमें क्या किया जाता है कि 1 सेकेंड में 24 और मोर देन 24 पिक्चर्स एक साथ वहां पे फ्लैश की जाती, छोड़ी जाती हैं कि एक सेंस ऑफ कंटिन्यूटी वहां पे बन सके। ठीक है, इन स्टिल पिक्चर्स, in still pictures 24 photos or pictures or more than 24 pictures in 1 second can be projected to create the continuity, and we can say that एक कंटिन्यूटी वहां पे बनी हुई है और पिक्चर आपको है वो कैरी ऑन ऐसे दिखाई देती है स्मूथली, आप उनको एक के बाद एक आपको ऐसा लगता है कि पूरी एक मूवी चले जा रही है। तो यही है जो परसिस्टेंस ऑफ विजन जो हमारी आईज के अंदर क्रिएट होता है। इसी फिनोमिना को वहां पे मूवीज में जो भी थिएटर है वहां पे इनको यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट कि आपको पता है कि हमारे नेचर में हमने गॉड ने इतने सारे मतलब हमें डिफरेंट कलर्स जो दिए हैं, ठीक है, वो डिफरेंट कलर्स हैं, इतने मतलब अच्छी जो हम कहें कि नेचर की जो ब्यूटी है वो हम कैसे देख पाते हैं। ठीक है, आपको हर एक सबको पता है कि नेचर के अंदर इतनी अच्छी जो चीजें हैं, उनमें इतने अच्छे जो कलर्स हैं, उनकी वजह से वो इतनी मतलब हम कहें कि अट्रैक्टिव हैं। तो वो कलर्स, वो ब्राइटनेस, या हम कहें कि उनकी ब्यूटी को हम कैसे देख पा रहे हैं। ठीक है, उसका भी एक रीजन है कि हमारी आईज के अंदर अभी हमने बताया था कि 2 टाइप की सेल्स होती हैं रेटिना पे। ओके, उन सेल्स की वजह से कौन सेल्स, पर्टिकुलरली कौन सी सेल्स, कौन सेल, जिनकी वजह से आप डिफरेंट टाइप के जो कलर्स हैं, वो नेचर की ब्यूटी है उसको आप देख पाते हो। ठीक है, नाउ वी कैन डिस्कस okay, how can we see the different colors, how can we see different colors, how can we see different colors, हमें जो अलग अलग नेचर में जो कलर्स हैं वो हम कैसे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो वी कैन सी these colors or these brightness, these lights due to retina have 2 type cells, rod cells,
Second one is cone cells. Next, rod cells are, both the cells are light sensitive, but it respond to intensity of light, or a brightness of a light. Now the cone cells respond to, we can say that these type of cells, you can also say that these type of cells, or they respond to different colors, because our retina has a number of cones and rod cells. Rod cells are in spherical shape and these are approximately in cone shapes. But these cone cells, different cone cells have different type of color sensitive. जो जितने टाइप के जो कलर हम कहते हैं कि कौन सेल्स हमारे रेटिना के ऊपर जो प्रेजेंट्स हैं वो अलग अलग जो प्रेजेंट हैं वो अलग अलग कलर के लिए सेंसिटिव होती हैं, ठीक है। जो डिफरेंट कलर जो नेचर में प्रेजेंट है उन सब के लिए जो हमारे रेटिना के ऊपर है वो कौन सेल्स प्रेजेंट होती हैं। पर्टिकुलरली जैसे हम कहें रेड कलर के लिए पर्टिकुलर अलग कौन सेल है, ठीक है। एनी अदर डिफरेंट कलर के लिए आप कंसिडर कर सकते हो कि इनके लिए अलग अलग जो कौन सेल्स हैं वो प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब क्या है, इन्हीं की वजह से हम है वो जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनके कलर से उनको देख पाते हैं, ठीक है। तो आप सिंपली कह सकते हो कि आप कौन सेल्स की वजह से डिफरेंट कलर्स में डिस्टिंग्विश कर पाते हो, ठीक है। ड्यू टू कौन सेल्स वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट कलर्स, बट सम पीपल्स डू नॉट सी द डिफरेंट कलर्स, और वी कैन से पर्टिकुलर कलर। क्यों? कुछ लोग होते हैं वो पर्टिकुलर कलर्स को देख नहीं पाते हैं। वो किस वजह से नहीं देख पाते हैं कि क्योंकि उनके रेटिना के ऊपर जो पर्टिकुलर उस कलर का कौन सेल है वो एब्सेंट है। जो पर्सन है जिसको सम डिफेक्ट्स हैं, मतलब जिसकी वजह से वो कलर नहीं देख पा रहे हैं, उनका क्या है कि वहां पे एक पर्टिकुलर टाइप की जो उस पर्टिकुलर कलर की जो कौन सेल्स है उनके रेटिना पे प्रेजेंट नहीं होती है, वो एब्सेंट होती हैं। उसकी वजह से क्या है वहां पे कि वो डिफरेंट टाइप के उस पर्टिकुलर कलर को वो नहीं देख पाते हैं, उस कलर के लिए वो सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो इसी डिफेक्ट्स को या हम कहें इस डिजीज को हम क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। द डिजीज इज नोन एज कलर ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस आप समझते हैं, ठीक है, कि वो पर्टिकुलर कलर उसको दिखाई नहीं देता है या उसमें वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। जिनकी उनके पास उसके रेटिना पे कौन सेल्स प्रेजेंट नहीं है उस पर्टिकुलर कलर में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा या उसको वो कलर्स दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। तो इसी डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। ओके, तो कलर ब्लाइंडनेस को हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। व्हेन ए पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश, व्हेन अ पर्सन cannot distinguish between different types or different colors, different colors, though his vision is normal, otherwise his vision is normal. The between when a person cannot distinguish between different colors, otherwise his vision is normal. आप वो सिंपली बात करेंगे तो उसकी जो आई साइट है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, उसको हर चीजें दिख रही हैं। बट एक पर्टिकुलर कलर के लिए, पर्टिकुलर कलर्स के लिए आप बोल सकते हो जिनकी कौन सेल्स उसके रेटिना पे प्रेजेंट नहीं है, उनके लिए वो कलर सेंसिटिव है, उनमें वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इसी डिफेक्ट को, इसी डिजीज को हम क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। और दिस डिजीज कैन नॉट बी करेक्टेड और कैन नॉट बी क्योर्ड।
इसको ठीक नहीं किया जा सकता विद द हेल्प ऑफ एनी मेडिकल ट्रीटमेंट और मेडिकल इक्विपमेंट्स, ओके, बिकॉज इट इज इनहेरिटरी। ये मतलब हम आप कह सकते हो कि ये जो आपका डिफेक्ट है वो जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से आता है, ठीक है, जेनेटिकली ये प्रेजेंट होता है ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। तो जेनेटिकली जो चीजें आई हुई हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनको आप क्योर, रेयर चांसेस होते हैं उनको आप क्योर कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक ऐसा डिफेक्ट है हमारी आई के अंदर जो क्योर नहीं हो सकता है, जो जेनेटिकली हमारी बॉडी के अंदर आता है, हम कहते हैं हमारे पेरेंट्स से। और मोस्टली ये कलर ब्लाइंडनेस जो है वो मेल्स में होता है, ज्यादातर जो इसके चांस हैं वो किसके में होते हैं, मेल्स के अंदर। फीमेल्स में मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं कि फीमेल्स को इस टाइप का डिफेक्ट ऑफ विजन हो, ये इस टाइप की मतलब कलर सेंसिटिव हो वो, ठीक है। तो मेल्स में ज्यादा चांसेस होते हैं और ये जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से आते हैं, ठीक है, जेनेटिकली आते हैं। और ये क्या है कि जो कलर ब्लाइंडनेस है अनफॉर्चुनेटली ये ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि रोड और कॉन सेल्स वो गॉड गिफ्टेड होती हैं हमारी रेटिना पे, उनकी वजह से ये डिफेक्ट यहाँ पे होता है। एक प्रीवियस लेक्चर में हमने बेटा डिस्कस किया था इन लास्ट लेक्चर कि आवर आई लेंस which is present in our eye, which is present in our eye, it is flexible, it is flexible or it is held by the with the help of an ciliary muscles, okay। तो वहां पे हमने बताया था, मैंने आपको बताया था कि आप जो आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ है वो कैन बी चेंज्ड, वी कैन ओके सॉरी, आई लेंस की फोकल लेंथ वो चेंज हो सकती है विद द हेल्प ऑफ एन सिलेरी मसल्स, सॉरी विद द हेल्प ऑफ ए ciliary muscle, because ciliary muscles hold the eye lens or they help the eye lens to change its focal length to see the distant objects or nearby objects on a same time, okay। तो इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है अकोमोडेशन। वो अपनी फोकल लेंथ को, आई लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर पा रहा है, इसी उसकी प्रॉपर्टी को, क्योंकि उसमें गुंजाइश आप बोल सकते हो, अकोमोडेशन मीन्स गुंजाइश। वहां पे मतलब आप कह सकते हो कि एक चेंज करने की जो उसकी मतलब कैपेबिलिटी है या एबिलिटी है उसकी, उसी एबिलिटी को क्या कहा जाता है, अकोमोडेशन, ओके। तो नाउ वी डिस्कस द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई। पावर ऑफ accommodation of human eye। accommodation वर्ड ही उसका मतलब ही है गुंजाइश, कि वहां पे एक ऐसी सुविधा है कि जिससे आप वहां पे जो आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ओके। तो इसी गुंजाइश को अकोमोडेशन कहा जाता है। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं सिंपली अपने वर्ड्स में, आगे फिर फर्दर हम इसकी हाउ कैन the focal length changes, how the power of the lens changes। So now can we discuss the one by one। First we discuss the power of accommodation। it is the ability of eye to observe distinctly, the ability of eye to observe distinctly the objects, present at या situated at widely different distances, widely different distances, okay, with the help of change in the focal length, with the help of change in focal length, with the help of change in focal length of eye lens, with the help of change in focal length of eye lens, which we can say that
by the action of ciliary muscles. With the help of change in focal length of eye lens by the action of ciliary muscles. By the action of ciliary muscles. Okay. So we can say that the ability of an eye lens to change to see the distant objects distinctly. मतलब दूर के जो चीजें हैं, डिफरेंट डिस्टेंसेस पे जो चीजें रखी हुई हैं, उनको अलग अलग आप क्लियरली देख पा रहे हो बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ अवर आई लेंस. और आई लेंस किसके हेल्प से फोकल लेंथ चेंज कर पा रहा है? विद द एक्शन ऑफ सिलरी मसल्स. विद द एक्शन ऑफ सिलरी मसल्स. दिस इज नोन एज पावर ऑफ अकोमोडेशन. Okay, power we can already know that power, we can denote the power with P. Okay, now we can discuss the how the power focal length changes, how power changes. Okay, तो हम एक टेबल की हेल्प से इन चीजों को समझते हैं. लाइक पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. सेकेंडली, ऑब्जेक्ट आपने कहा, मतलब कहाँ का आप ऑब्जेक्ट देखना चाह रहे हैं? फार अपार्ट डिस्टेंसेस और नियर बाय डिस्टेंसेस. ओके. नेक्स्ट, सिलरी मसल्स किस पोजीशन में होंगे? क्योंकि मेन फंक्शन किसका है यहाँ पे? सिलरी मसल्स. उन्हीं की हेल्प से हमारा जो आई लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ को क्या करेगा? एडजस्ट कर पाएगा. ओके. तो सिलरी मसल्स, सिलरी मसल्स. नाउ नेक्स्ट हमारा क्या होगा यहाँ पे? आप कह सकते हो कि आई लेंस कैसे, उसकी मतलब क्या स्टेट होगी? थिन होगा, थिक होगा. ठीक है. तो आई लेंस, आई लेंस. नेक्स्ट, फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? आई लेंस की जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, because it is flexible, it can change its focal length. And what about the power? Power of eye lens, eye lens. Or is eye accommodated or unaccommodated in that state? Accommodation, accommodation. All these points about eye we can discuss here. First, object is placed when we see the far apart objects widely. मतलब हम कह सकते हैं कि सीधी सी बात क्या है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? बहुत ज्यादा दूरी पे. वी कैन से दैट एट इंफिनिटी. ओके. तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट और वी कैन से फार अपार्ट ऑब्जेक्ट. वी कैन से फार अपार्ट ऑब्जेक्ट, or approximately we can say that infinity. The far apart distance is known as infinity. ठीक है. Ciliary muscles are in relaxed position. Ciliary muscles are in relaxed position. Okay. सिलरी मसल, जब हम फार अपार्ट दूर की चीजें देखते हैं तो हमारी आईज में जो सिलरी मसल्स है वो रिलैक्स्ड होती है, रिलैक्स स्टेट में होती हैं. तो उस केस में जो हमारा आई लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ है वो आई लेंस की फोकल लेंथ में चेंजेस आएंगे. और वो चेंजेस कैसे आएंगे कि आई लेंस हमारा क्या हो जाता है? थिन हो जाता है. आई लेंस क्या हो जाएगा हमारा? थिन. और वी कैन से दैट, ओके, आई लेंस बिकम्स थिन and the focal length increases. When eye lens is thin, the focal length is increases because the radius of curvature increases. Radius of curvature of eye lens is increases. That's why the focal length is increases. Okay, increases. Okay. Next, what about the power? You know that the formula of the power is inverse of focal length. We can write it here. It is 100 by f in centimeter, or power is 1 by f in meter.
Okay, so we can normally say that power is inverse of focal length. When focal length increases, power decreases. Power decreases. Okay, because these are inversely proportional to each other. Now, what is the state of I? I, when we see the distant object or a far apart object which is placed at, we can say that it is placed at infinity, our I is unaccommodated. Our I is unaccommodated. Our I is unaccommodated. Okay? Or by the accommodation of I is due to the action of ciliary muscles. You can also note that point here. The accommodation of I is due to ciliary muscles. Main जो इसका है, the accommodation of I is due to action of ciliary muscles. Due to action of ciliary muscles. Now we can consider the second case here, which is when we see the nearby objects. When we see the nearby object, ये आपको पता है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से हम ऑब्जेक्ट को ज्यादा पास लेके आते हैं तो वो इमेज हमें क्लियर नहीं दिखाई देती है, वो ऑब्जेक्ट हमें ब्लर्ड दिखाई देते हैं, हम कहते हैं धुंधले हमें दिखाई देते हैं. ठीक है, तो एक पर्टिकुलर जो डिस्टेंस है जहां पे आप एक सबसे नियरेस्ट जो डिस्टेंस है जहां पे आप ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पा रहे हो, उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? नियर पॉइंट. द डिस्टेंस इज नोन एज नियर पॉइंट, और वी कैन से रफली से इट दैट 25 centimeter. The near point, the distance of near point is 25 centimeter, at which you can see the objects clearly. Okay, so the near point, nearby distance, or we can say that at 25 centimeter. Okay, we can say that at 25 centimeter. Ciliary muscles are contracted. Ciliary muscles are contracted. These are when we see the nearby objects, the ciliary muscles are contracted. That's why the eye lens becomes thick. Eye lens become thick. Eye lens become thick. Okay. Due to this, radius of curvature of eye lens decreases. That's why the focal length of eye lens also decreases. ये अभी हमने पहले बताया था कि पावर फोकल लेंथ की क्या होती है? इनवर्स रिलेशन होता है. तो व्हेन फोकल लेंथ डिक्रीजेस, पावर इंक्रीजेस, और आवर आई लेंस कैन इजीली converts the light rays on retina to form an image. Okay, or in this state eye is in accommodated state. Eye is accommodated. Okay, this is the simplest way in which you can consider this. Okay, तो यहाँ पे एक दो चीजें आपकी बचती हैं, नियर पॉइंट, फार पॉइंट और रेंज ऑफ विजन. तो वी कैन डिस्कस वन बाय वन, और ये आप बेटा जरूर याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा भी अगर ध्यान देंगे तो आपको क्लियरली ये चीजें याद हो जाएंगी, समझ में भी आएंगी, थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो अब हम इसके लिए कुछ एक दो पॉइंट्स है वो डिस्कस कर लेते हैं. जैसे अभी हमने बोला था फार पॉइंट, नियर पॉइंट. ओके, तो फार पॉइंट क्या होता है? द पॉइंट, फार पॉइंट हमारा होता है कि द मोस्ट डिस्टेंट पॉइंट एट which an object can be seen clearly. Okay, the most distant point at which object can be seen clearly. We can say that it is infinity,
Okay, the far point is at infinity. Yeah, far apart distance is infinity. Okay, the second one is near point. Second one is near point. The near point is near point. The closest distance. The closest distance at which object can be seen clearly. Object can be seen clearly. Seen clearly is known as near point, and near point is 25 centimeter. 25 centimeter. Okay. Or near point is also known as the distance of the near point of a normal eye, is also called the least distance of distinct vision. The point at which, the nearest point at which object can be seen clearly is known as the least distance. Least distance of distinct vision. डिस्टिंक्ट विजन. सबसे पास का वो पॉइंट जहां पे आप ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पा रहे हो, उसको हम क्या कहते हैं? द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. ओके, डिस्टिंक्ट विजन, और विच इज 20 फॉर नॉर्मल आई की. ये भी हमने इन्फिनिटी किसके लिए बताया था? नॉर्मल आई. यहाँ पे हम डिफेक्टेड आईज की बात नहीं कर रहे हैं, जिनको कोई डिजीज है, दूर के ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहे, पास के नहीं दिख रहे हैं, वो चीजें हम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं. हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं फॉर अ नॉर्मल आई द फार पॉइंट इज इन्फिनिटी, एंड फॉर नॉर्मल आई द नियरेस्ट पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर, विच इज ऑल्सो नोन एज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. द लास्ट पॉइंट इज रेंज ऑफ विजन. रेंज ऑफ विजन. एक नॉर्मल आई के लिए विजन की क्या रेंज होती है? So the distance between far point and near point is known as the distance between far point and near point. Okay, the distance between far point and near point is known as the range of vision. Okay, so far point infinity and nearest point is 25 centimeter. The distance between these 2 points at which you can see the objects clearly is known as range of vision. Okay, these are the important points which can ask. Now the last point is power of accommodation for a normal eye. The maximum power of accommodation for a normal eye, हम इसको लिखेंगे P से. ठीक है, और जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन हमने बताया था 25 सेंटीमीटर है, या हम कहें कि उसका नियर पॉइंट कितना है? 25 सेंटीमीटर है. तो वो हम किससे डिनोट करते हैं? D से. तो D इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, एंड द पावर ऑफ अकोमोडेशन इज, मैक्सिमम बोल सकते हैं आप, तो मैक्सिमम पावर of accommodation of human eye is, we can denote it by P and 100 by F. This is the formula of power. Now it is for the least distance of distinct vision. जहां तक हमारी आई की जो फोकल लेंथ है वो चेंज हो सकती है, उसके बियॉन्ड वो चेंज नहीं होगी. Okay, so it is D is 25 centimeter. Okay, so this is for diopter, because the unit of power is known as diopter. So this is for diopter. Okay, this is the maximum power of accommodation of human eye. Okay, thank you. In next lecture, we discuss some defects of vision. What type of disease can be our eye have. Okay, thank you, have a nice day.